Good morning to all my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and doing well in your studies. So today we are going to start pronouns. So before telling you what is a pronoun, let's read this paragraph. Tina bought some grapes. Tina wanted to distribute the grapes at an old age home. Tina went to the old age home. Tina distributed the grapes. Tina was very happy to distribute the grapes. So here the highlighted words Tina, grapes, old age home, they all are naming words, means they are nouns. But instead of repeating the nouns again and again, like Tina, here we repeated 4 times grapes and old age home. So instead of repeating these naming words, we can use she for Tina, them for grapes, and there for old age home. So now let's read the paragraph again. Tina bought some grapes. She wanted to distribute them at an old age home. She went there. She distributed them. She was very happy to distribute them. So, in place of naming words, we used she, them, and their. So, instead of repeating them again and again, we used some words in place of them. So, when we replace a noun, so the words by which we replaced a noun is called pronoun. So a pronoun takes the place of a noun. So you can see here कि जो pronouns है उसने किसकी place लिया, noun की place को लिया है. And why we use pronoun? We use pronoun to avoid the repetitive use of nouns. क्योंकि बार बार अगर हम name को बार बार use करते हैं so it doesn't look good. So we use pronoun in place of nouns. So we use pronouns to avoid repetitive use of nouns. The noun for which a pronoun is used is called antecedent. तो जो noun हम use करते हैं एक pronoun के लिए उसको हम बोलते हैं antecedent. Like in the above example, Tina is antecedent for she and grapes is the antecedent for them. तो she जो टीना है वो किसका एंटीसीडेंट है, शी का, और जो ग्रेप्स है वो किसका है, देम का. सो नाउ you may have understood that what are pronouns. Pronouns are the words that replace nouns. तो pronouns कौन से वर्ड होते हैं जो नाउन की प्लेस में यूज किए जाते हैं. तो some pronouns are here: I, me, she, we, they, who, that, yours, his, her, it, etc. So these all are pronouns. So now after understanding what is a pronoun, we'll start kinds of pronoun. So here are the kinds of pronoun: personal pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronouns, relative pronouns, possessive pronouns, reciprocal pronouns, distributive pronouns, and indefinite pronouns. So now I will explain you one by one each kind of pronoun. So first is personal and possessive pronouns. So personal pronouns means pronouns related with a person or a thing. यानी कि जो प्रोनाउन एक पर्सन और एक किसी भी पर्सन या किसी भी चीज़ से रिलेटेड होते हैं, दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन. सो अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और अ थिंग. इट इज़ यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस. तो पर्सनल प्रोनाउन जो है एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है और एज एन ऑब्जेक्ट भी हम उसको यूज कर सकते हैं. इट रिप्लेसेस अ नाउन इन द सब्जेक्ट एंड object position. So you know what is a subject. Subject means doer.
जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, किसी भी वर्क को कोई कर रहा है, कोई भी एक्शन जिसके द्वारा किया जा रहा है, दैट इज अ सब्जेक्ट. सो एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, द रिजल्ट कम्स ऑन ऑब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट कर रहा है उसका रिजल्ट किसके ऊपर पड़ता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है. एंड द वेरी इजी वे टू recognize an object is when you put a question in verb what and whom, the answer is an object. अगर आप वर्ब में क्या या किसको का क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो जो भी आंसर आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है. और सब्जेक्ट मीन्स डूअर. तो सब्जेक्ट ने जो काम कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट हो गया. ऑब्जेक्ट हो गया जो काम उसने किया है उसका रिजल्ट जिस पर भी पड़ता है वो रिसीव करता है, जो भी उस रिजल्ट को रिसीव करता है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड यू टू इन्फॉर्म हिम अबाउट द सरप्राइज इंस्पेक्शन. सो हियर आई इज द सब्जेक्ट. आई आस्क्ड यू, मैंने पूछा, तो यहाँ पे डूअर कौन है? आई है. एंड हु रिसीव्स द एक्शन? यू एंड हिम. ओके. तो यहाँ पर आपका आई हो गया सब्जेक्ट एंड यू एंड हिम आपका हो गया ऑब्जेक्ट. सो सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस में हम पर्सनल प्रोनाउंस को यूज करते हैं. सो आई, यू, हिम, दे आर पर्सनल प्रोनाउंस. वी विल बी लेट इफ यू डोंट हरी अप. सो हियर वी विल बी लेट, हम लेट हो जाएंगे. क्यों लेट होंगे? अगर तुम जल्दी नहीं करते. तो वी एंड यू आर पर्सनल प्रोनाउंस. Peter sang the song to me. So me is here personal pronoun. So personal pronouns means a pronoun that stands for a person or a thing. जो भी pronoun हम किसी भी person के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए और किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, that is personal pronoun. Next one is possessive pronouns. Possessive means possession, यानी कि ownership, relationship. किसी चीज़ के ऊपर हमारा अधिकार होता है तो उसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं possessive pronouns. तो pronoun that shows possession, ownership or some other relationship is called a possessive pronoun. Mine, ours, yours, his, hers, its and theirs are possessive pronouns. So these words mine, ours, yours, his, hers, its and theirs are possessive pronouns. तो ये वर्ड्स आप याद कर लीजिए. ये वर्ड्स जो हैं एज अ possessive pronouns यूज़ होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस मनी इज आर्स. तो ये मनी किसकी है? हमारी है. तो इट इज़ शोइंग द पोजीशन. तो ये हमारा अधिकार बता रहा है मनी पर. दिस कैट इज माइन. तो माइन इज शोइंग द ओनरशिप और पोजीशन. सो दिस इज possessive pronoun. And as we know that there are three persons. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. 3 पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन मीन्स द पर्सन हु इज स्पीकिंग एंड सेकेंड पर्सन मीन्स द पर्सन स्पोकन टू, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, दैट इज सेकेंड पर्सन. एंड थर्ड पर्सन इज द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट. थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो पर्सनल प्रोनाउंस एंड पॉजिटिव प्रोनाउंस रेफर टू द 3 persons and the 3 genders masculine, feminine and neuter. तो पॉजेसिव प्रोनाउंस और पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो 3 persons को, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन यूज़ होते एज अ थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन यूज़ होते हैं और 3 genders में यूज़ होते हैं, यानी मैस्कुलिन के लिए, फेमिनाइन के लिए और न्यूटर के लिए. न्यूटर मीन्स क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स और जिसके जेंडर के बारे में हमें पता नहीं होता है. फेमिनाइन मीन्स जो फीमेल को रेफ़र करेगा एंड मैस्कुलिन जो मेल को रेफ़र करता है. तो पर्सनल प्रोनाउंस, नाउ सी द लिस्ट. पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई एंड वी. आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन्स एंड इनका जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई और वी सब्जेक्टिव केस है. एज अ सब्जेक्ट हम उसे यूज़ करेंगे एंड मी और अस हम उसे एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे. एंड पॉजेसिव में हम क्या यूज़ करेंगे? आई का पॉजेसिव क्या हो जाता है? माइन. और वी का पॉजेसिव क्या बन जाता है? आर्स. इसी तरह से, और ये मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों के लिए ही यूज़ होता है. इसी तरह से हमारा सेकेंड पर्सन होता है यू. तो
यू एज अ सब्जेक्ट भी यूज हो, यू ही यूज होगा, और एज एन ऑब्जेक्ट भी यू को हम यू ही यूज करेंगे. एंड पॉजेसिव केस इज योर्स. एंड यू इज ऑल्सो यूज फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर. नाउ द थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट एंड दे. तो ही, शी, इट, दे are the third person. He is used for masculine, she is used for feminine, and it is used for neuter, and they is used for masculine, feminine and neuter. they तीनों के लिए ही यूज होगा. तो इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही का हिम, एंड पॉजेसिव केस हिज, एंड फेमिनाइन में शी, ऑब्जेक्टिव केस हर, एंड पॉजेसिव केस हर्स. जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव. तो इस तरह से शी का ऑब्जेक्टिव केस हमारा हर हो जाएगा, और उसको अगर हम एज ए पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो शी की प्लेस में हम हर्स यूज़ करेंगे. ऐसे इट सब्जेक्ट, इट ऑब्जेक्ट में भी हम इट ही यूज़ करेंगे, एंड पॉजेसिव में हम यूज़ करेंगे इट्स. एंड दे का देम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एंड देयर्स उसका क्या हो जाएगा? पॉजेसिव प्रोनाउंस हो जाएगा.